بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں شاہد عباس اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے صرف و نحو۔ صرف و نحو کو بیان کرنے سے یا ڈیفائن کرنے سے پہلے ہم دیکھیں گے گرامر یا قواعد کیا ہے۔ گرامر یا قواعد کیا ہے؟ ہر زبان کو سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے اس کو چند اصول اور قوانین جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں۔ ہر زبان کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے چند اصول و قوانین بنائے جاتے ہیں، چند ضوابط بنائے جاتے ہیں جن کو گرامر کہا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ ہر زبان کو سیکھنے کے لیے یا سمجھنے کے لیے چند اصول اور قوانین جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں۔ اسی طرح اردو زبان میں بھی چند اصول اور قوانین ہیں جن کو گرامر یا قواعد کہا جاتا ہے، گرامر یا قواعد کہا جاتا ہے۔ اب گرامر کی یا قواعد کے جو ہے وہ دو حصے ہیں۔ گرامر یا قواعد کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے حصہ صرف، دوسرا حصہ ہے حصہ نحو۔ حصہ صرف کیا ہے؟ صرف وہ نہیں جس سے ہم کپڑے دھوتے ہیں، یہاں اس کا مطلب اور ہے۔ حصہ صرف کیا ہے؟ حصہ صرف ہے جس میں حصہ صرف گرامر کا وہ حصہ جس میں صرف الفاظ سے بحث کی جاتی ہے۔ حصہ صرف گرامر کا یا قواعد کا وہ حصہ جس میں صرف الفاظ سے بحث کی جاتی ہے یا الفاظ کے متعلق بحث کی جاتی ہے۔ بالفرض کوئی بھی ہم لفظ جب لکھتے ہیں یا ہم پڑھتے ہیں، کوئی بھی لفظ جب ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو لفظ ہم نے پڑھا ہے یا ہم نے سنا ہے یہ جمع ہے، واحد ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، اسم ہے، فعل ہے، کیا ہے؟ لفظ کو دیکھنا ہے۔ حصہ صرف قواعد کا وہ حصہ ہے جس میں صرف آپ جو ہے وہ الفاظ کے متعلق بحث کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہم نے پڑھا ہے یا سنا ہے یہ جمع ہے، واحد ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، اسم ہے، فعل ہے، کیا ہے؟ اس کے بعد ہے حصہ نحو۔ حصہ نحو قواعد کا یا گرامر کا وہ حصہ جس میں مرکب جملوں یا عبارتوں کے متعلق بحث کی جاتی ہے۔ گرامر یا قواعد کا وہ حصہ جس میں مرکب جملوں یا عبارتوں کے متعلق بحث کی جاتی ہے حصہ نحو کہلاتا ہے۔ پوری عبارت کو دیکھنا ہے۔ جب ہم ایک جملہ پڑھتے ہیں تو وہ جملہ کس زمرے میں آئے گا؟ حصہ نحو میں آئے گا۔ اگر ایک لفظ ہے تو وہ حصہ صرف میں آئے گا۔ اس کے بعد ہے جی حرف کیا ہے؟ حروف تہجی الف سے لے کے یہ تک جتنے بھی حروف آتے ہیں ان کو حرف کہا جاتا ہے۔ الف سے لے کے یہ تک جتنے بھی حروف تہجی ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حرف کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو حرف ہیں مختلف حروف یہ مل کے کیا بناتے ہیں؟ الفاظ بناتے ہیں یا لفظ بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی؟ حروف مل کے الفاظ بناتے ہیں اور الفاظ مل کے جملہ بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ جملہ مل کے پھر عبارت بناتا ہے۔ عبارت جس کو ہم عبارت بھی کہتے ہیں، پیراگراف انگلش میں کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اب حروف مل کے یعنی کون کون سے حروف ہیں؟ الف سے لے کے الف بے جو آپ نے پڑھے ہوئے ہیں یہ تک بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، وہ حروف مل کے کیا بناتے ہیں؟ الفاظ بناتے ہیں۔ اچھا جی، بالفرض ایک میں لفظ ہے اب، تو یہاں پر دو حروف ملے ہیں اور ایک لفظ بنا ہے۔ الف اور بے ملے ہیں اور ایک لفظ بنا ہے۔ ادب، اب ایک لفظ ہے ادب، یہاں پر تین حرف ملے ہیں، تین حروف ملے ہیں تو ایک لفظ بنا ہے۔ کون کون سے؟ الف، دال اور بے، یہ تین حروف ملے ہیں اور ایک لفظ بنا ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ اس کے بعد آتے ہیں جی الفاظ کی اقسام کون کون سی ہیں؟ الفاظ کی اقسام کون کون سی؟ الفاظ کی دو اقسام ہیں، لفظ موضوع، لفظ محمل۔ لفظ موضوع کو کلمہ بھی کہتے ہیں،
बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कलमा और मोहम्मल, अल्फाज की अकसाम कलमा मोहम्मल, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ग्रामर में उन्होंने चेंज कर दिया है, इसको लफ्ज़ मौजू का नाम दे दिया और इसको लफ्ज़ मोहम्मल का नाम दे दिया है। लफ्ज़ मौजू को कलमा भी कहते हैं। ऐसे अल्फाज जिनको पढ़ने या सुनने के बाद मतलब की बात फ़ौरन समझ में आ जाए, मतलब फ़ौरन समझ में आ जाए, उन्हें कहते हैं कलमा। उन हरूफ को, उन अल्फाज को क्या कहते हैं? उन अल्फाज को लफ्ज़ मौजू या कलमा कहते हैं। ऐसे अल्फाज जिनको पढ़ने या सुनने के बाद मतलब फ़ौरन समझ में आ जाए उनको कलमा या लफ्ज़ मौजू कहा जाता है, और ऐसे अल्फाज जिनको पढ़ने या सुनने के बाद मतलब फ़ौरन समझ में ना आए लफ्ज़ मोहम्मल कहलाता है। लफ्ज़ मोहम्मल उस वक्त आपको समझ आएगा जब लफ्ज़ मोहम्मल से पहले कोई लफ्ज़ मौजू लगेगा। अब इसकी मिसाल लेते हैं। बैठो भाई रोटी वोटी खा के जाना। मिसाल है, बिलफर्ज आपके घर में कोई मेहमान आ जाता है तो आप उसको कहते हैं, वो जाने लगता है तो आप उसको कहते हैं कि बैठो भाई खाना रोटी वोटी खा के जाना, या पानी वानी पी के जाना, या खाना शाना खा के जाना। तो अगर बिलफर्ज आप सिर्फ कहते हो बैठो भाई रोटी खा के जाना या खाना खा के जाना, तो ये इसमें रोटी जो है ये बात फ़ौरन आपको समझ आ रही है, मतलब फ़ौरन समझ में आ रहा है, तो ये रोटी जो है ये लफ्ज़ मौजू है, मतलब फ़ौरन हमें समझ आ रहा है। ठीक है ना? मोहम्मल वो है अगर आप कहते हो बैठो भाई बोटी खा के जाना, बोटी खा के जाना, तो समझ में नहीं आ रहा, ये लफ्ज़ मोहम्मल है। बोटी जो है लफ्ज़ मोहम्मल है, इससे पहले लफ्ज़ मौजू रोटी लगाओगे तो बात समझ में आएगी, वरना समझ में फ़ौरन मतलब समझ में नहीं आएगा। ठीक है? लफ्ज़ मौजू जिसको पढ़ने या सुनने के बाद मतलब फ़ौरन समझ में आ जाए, लफ्ज़ मौजू ऐसे अल्फाज का मजमुआ है या ऐसे अल्फाज हैं जिनको पढ़ने या सुनने के बाद फ़ौरन जो है बात समझ में आ जाए या फ़ौरन मतलब समझ में आ जाए, लफ्ज़ मौजू कहलाता है। और लफ्ज़ मोहम्मल ऐसे अल्फाज हैं या ऐसे अल्फाज का मजमुआ है जिनको पढ़ने के बाद मतलब फ़ौरन समझ में ना आए, लफ्ज़ मौजू मोहम्मल कहलाते हैं, जब तक इससे पहले को लफ्ज़ मौजू ना लगाया जाए। जैसे इस जुमले में बैठो भाई रोटी वोटी खा के जाना, इसमें रोटी जो है लफ्ज़ मौजू है या कलमा है, और वोटी जो है वो लफ्ज़ मोहम्मल है या क्या है, सॉरी लफ्ज़ मोहम्मल है। रोटी जो है वो लफ्ज़ मौजू या कलमा है, और वोटी जो है वो लफ्ज़ मोहम्मल है। ठीक है भाई? देखो ये है मोहम्मल, अगर इसको अकेले को आप पढ़ोगे तो बात मतलब फ़ौरन समझ में नहीं आएगा, इससे पहले लफ्ज़ मौजू या कलमा लगाओगे तो बात फ़ौरन समझ में आ जाएगी, मतलब फ़ौरन समझ में आ जाएगा। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका? आगे चलते हैं। आगे है इस्म। किसी इस्म हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इंग्लिश में भी उर्दू में भी। इस्म कहते हैं किसी भी जगह, किसी भी शख्स या किसी भी आदमी के नाम को इस्म कहते हैं। किसी भी जगह, शख्स या आदमी के नाम, सॉरी किसी भी जगह, किसी भी शख्स या किसी भी चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं। सॉरी मिस्टेक हो गई थी। इस्म कहते हैं किसी भी जगह, किसी भी चीज़ या किसी भी शख्स के नाम को। ठीक है? जैसे आदमी, मैं कहता हूँ आदमी, मस्जिद कहता हूँ, किताब कहता हूँ। बिलफर्ज मैं किताब कहता हूँ या कुर्सी कहता हूँ, कुर्सी, तो ये कुर्सी एक चीज़ का नाम है, कुर्सी। मैं कहता हूँ मस्जिद एक जगह का नाम है। मैं कहता हूँ चन्नीगोट एक जगह का नाम है। मैं कहता हूँ जोहा एक शख्स का नाम है। मैं कहता हूँ अकरम तो एक शख्स का नाम है। मैं शायद कहता हूँ ये शख्स। ठीक है ना? तो किसी भी चीज़, जगह या किसी भी चीज़, जगह या शख्स के नाम को इस्म कहते हैं। अब आगे इस्म की दो इकसाम हैं। वैसे तो बहुत सारी इकसाम हैं, लेकिन इसकी जो आम तौर पर है वो दो इकसाम होती हैं, इस्म नकरा, इस्म मारफा। इस्म नकरा कहते हैं किसी भी आम चीज़, आम जगह या आम शख्स के नाम को हम क्या कहते हैं? इस्म नकरा। किसी भी आम चीज़,
आम जगह या आम शख्स। बिलफर्ज मैं आदमी कह देता हूँ, आदमी कहता हूँ तो आदमी बहुत सारे आम हैं, बहुत सारे हैं, तो ये क्या है, इसम नकरा है। कुर्सी में कह देता हूँ, कुर्सी एक आम चीज़ है, तो ये क्या है, इसम नकरा है। इसी तरह इसम मारफा ख़ास जगह, ख़ास चीज़, अब इसम मारफा में ख़ास चीज़ होगी, ख़ास शख्स होगा या ख़ास चीज़ होगी, ख़ास जगह होगी या ख़ास शख्स होगा। बिलफर्ज अल्लामा इकबाल एक अहम शख्सियत का नाम है, कायदे आज़म एक अहम शख्सियत का नाम है, ठीक है ना। इसी तरह कुरान पाक एक ख़ास किताब का नाम है, कुरान पाक एक ख़ास किताब का नाम है। मस्जिद का मैंने हवाला पिछले में दिया था, इसम नकरा में मस्जिद अगर वैसे तो मस्जिद जो है ये मुसलमानों की इबादत के लिए ख़ास जगह है, लेकिन मस्जिद अगर अकेली आ जाए तो मस्जिदें बहुत सारी हैं, तो ये आम होगा। अगर मस्जिद नबवी कह देते हैं तो वो एक ख़ास जगह है, वो फिर इसम मारफा में आ जाएगी। मस्जिद नबवी कह देते हो, मस्जिद अक्सा कह देते हो, या किसी भी मस्जिद का साथ में नाम जोड़ देते हो। अगर किसी भी शख्स का साथ में नाम लग जाता है, बिलफर्ज मैं कहता हूँ फ़िज़ा, तो ये भी इसम मारफा है। किसी भी शख्स का जब नाम आ जाता है तो इसम मारफा बन जाता है। वैसे तो फ़िज़ा बहुत सारी हैं, लेकिन ये फ़िज़ा जो है ये अपनी जो है ज़ात में एक इसकी अलग एक पहचान है, ठीक है ना, क्योंकि इसका दूसरी जो फ़िज़ा दूसरी हैं दुनिया में, उनसे जहन, उनसे शक्लें, हर चीज़ इनकी मुख्तलिफ है, इसलिए ये एक ख़ास शख्स है। समझ आ रही है बात की। ये है आज का हमारा टॉपिक। कल के टॉपिक के लिए इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। थैंक्स।